Hello everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. कैसे हैं आप सब? I hope you're doing good. Now in our last video we started doing the question answers which are behind the chapter Story of Cricket. हमने स्टोरी पूरी पढ़ ली विच वॉज इंटरेस्टिंग. हमने बहुत सारी चीज़ें जानी अबाउट क्रिकेट एंड ऑल माई क्रिकेट फैंस आउट देयर, आई एम श्योर you have a lot of things to talk about. But now it's time to answer some questions. So let's start. Now for the NCERT solutions, and we are doing the NCERT book Honeycomb, right? So अब हमने उसका comprehension check के ये जो second question था we had seen. Now let's go to the third question. Now I'm reading the question. I want you to answer the question. Make sure please read the question carefully because we have done the chapter nicely, right? अब आप questions अच्छे से समझ के then answer. The men for whom the world is a stage. ये किसके लिए कहा गया था? The men for whom the world is a stage. ये कहा गया था इंडियन क्रिकेटर्स के लिए, right? So now अब हमें बताना है. See the question says, just a second, yeah. So you have to say the कि ये किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है. ये जो हमने पूरा कहा है the men for whom the world is a stage, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है एंड ये क्यों कहा गया है. It refers to the famous cricket fields in the world. So now the question is, does it refer to the famous cricket fields? जैसे हम जो डिफरेंट ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, क्या इसका मतलब वो है? सेकेंड इज इट मीन्स दैट देयर आर मेनी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. क्या इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्रीज जो हमारी पूरी जो कंट्रीज है हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज हैं जो क्रिकेट खेलती हैं? क्या इसका मतलब वो है? It implies that cricketers are like actors and every cricket ground is like a stage on which the drama of cricket is enacted in the world. So basically अगर first two answers दिए ना तो बहुत बुरा होगा, इसलिए the answer is third. Obviously it means that the cricketers are like actors जिनके लिए पूरी दुनिया जो all the cricket grounds are like, it's like a stage, right? And where the drama of cricket is enacted over and over again. Now you have to mark the right answer, and the right answer is the third answer, and that is it. Now let's move forward. Now the question is, name some stick and ball games that you have witnessed or heard of. So don't write gulli danda. Okay, so what are the games जिसमें stick और ball use होती है? So we have hockey, we have cricket, we have baseball, polo है and billiards है. These are the few games. Okay, if you know about any other games you can write it, but gulli danda लिख के मत आना. Next one is, the Parsis were the first Indian community to take to cricket. Why? पारसीज ही वो पहले लोग क्यों थे, वो फर्स्ट कम्युनिटी क्यों थी जिन्होंने क्रिकेट स्टार्ट किया था? नाउ इफ़ यू रिमेंबर द चैप्टर, पारसीज और जो ब्रिटिश थे उनका एक कनेक्ट था थ्रू द ट्रेड, राइट? एंड दे वर द फर्स्ट वन टू वेस्टर्नाइज देमसेल्व्स, जिन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे जो मतलब वेस्टर्न कंट्री का कल्चर जो था उसको अडेप्ट किया था. सो दिस इज हाउ यू विल फ्रेम योर आंसर. द पारसीज वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक टू क्रिकेट as they were in close contact with the British. First point is they were in close contact with British. और क्यों थे वो? Because of their interest in trade. क्यों थे वो? क्योंकि उनको ट्रेड में बहुत इंटरेस्ट था. तो they were like in जो उनके ट्रेड रिलेशनशिप्स थे ब्रिटिशर्स के साथ. And the second point was, and the first Indian community to westernize. And they were the first Indian community to westernize, means to take the culture. Now the next one is, the rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for the former. Now the rivalry, जो दुश्मनी चल रही थी between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending. If you remember it, in the chapter I told you what was the happy ending. What was it? And for the former से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे Parsis के बारे में, राइट? फॉर्मर से हम बात कर रहे हैं पारसीज के बारे में. सो पारसीज के लिए वाई वॉज इट अ हैप्पी एंडिंग? सो थिंक अबाउट इट बिकॉज आई एम श्योर यू शुड नो द आंसर. वी हैव डिस्कस्ड इट.
because there was a match. If you remember, there was a match right 4 years after the INC was formed, which is Indian National Congress, and वो जो था वो बॉम्बे जिमखाना और पारसीज के बीच में था और पारसी भाई जीत गए थे. And that is why they were very happy that इन लोगों ने हमें खेलने नहीं दिया, इन लोगों के चक्कर में हम लोगों को नया जिमखाना खोलना पड़ा, and finally we won the match. We are so good. And that was a happy ending for them. So the happy ending refers to the victory of the Parsis team over the Bombay Gymkhana. Over मतलब इनके ऊपर इनकी victory थी in a game of cricket, and it was in 1889. Remember the year. It was 1889, right 4 years after INC was formed. If you want to include this in your answer, you can write 4 years after the INC, Indian National Congress, was formed. Okay. The next question is, do you think cricket owes its present popularity to television? Obviously, right? क्रिकेट जो है उसको आज जो इतनी पॉपुलैरिटी मिली है वो टेलीविज़न की वजह से मिली है. अगर टेलीविज़न नहीं होता तो हम मैच देख नहीं पाते, अगर हमें मैच नहीं पता चलता तो हमें प्लेयर्स के बारे में नहीं पता चलता, हम उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते, वो हमारे क्रिकेट हीरोज़ नहीं बन पाते. सो बेसिकली इट वाज टेलीविज़न जिसकी वजह से ये पूरा ऑडियंस जो है वो एक्सपैंड हुआ, और हर नुक्के में, हर गली में एक छोटा बच्चा होता है जिसको लगता है बड़े होकर वो धोनी ही बनने वाला है, राइट? तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं. यस, आई थिंक क्रिकेट ओज इट्स प्रेजेंट पॉपुलैरिटी टू टेलीविजन. मुझे लगता है कि पहले तो आपने पूरा क्वेश्चन को कॉपी कर दिया कि भैया हाँ मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है. अब क्यों है? इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ इट्स ऑडियंस एज वेल एज पॉपुलैरिटी टू डिफरेंट कंट्रीज. सो एक्सपेंशन ऑफ ऑडियंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. सो इस चीज़ को प्लीज़ याद रखना, एज वेल एज पॉपुलैरिटी टू डिफरेंट कंट्रीज. ओके, सो अब हमें बाकी लोगों को भी हमारी कंट्री, हमारे क्रिकेट टीम के बारे में, उनके बारे में मतलब उनके वो लोग जानने लगे हैं, हम पॉपुलर हो चुके हैं. एंड इवन इन स्मॉल टाउन्स. सो ये जो क्रिकेट है वो हर जगह पे पॉपुलर है बिकॉज ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग, राइट? मैचेस प्लेड एट वन प्लेस कैन बी व्यूड वर्ल्ड वाइड. सो ये सेकेंड पॉइंट हो गया कि जो मैचेस हैं जो एक जगह पे खेले जा रहे हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड देखे जा सकते हैं. एक मैच जो मुंबई में खेला जा रहा है या दिल्ली में खेला जा रहा है उसको सिडनी वाले भी देख सकते हैं, और सिडनी वाला मैच सूरत में देख सकते हैं. Young kids and youths from various parts of the country see, appreciate and dream of becoming a cricketer. So now अगर इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें 3 पार्ट में मैंने आंसर लिखा हुआ है. फर्स्ट पार्ट क्या है कि आपका ऑडियंस का एक्सपेंशन हो रहा है. सेकेंड पार्ट क्या है कि जो मैचेस हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड में देखे जा सकते हैं. थर्ड पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट द किड्स एंड द यूथ, जिनके लिए जो क्रिकेटर्स हैं वो भगवान से कम नहीं है, और उनको लगता है कि आज वो इतना अमेजिंग खेलते हैं ना, एक दिन वो भी क्रिकेटर बन ही जाएंगे, राइट? सो now this was our answer. Make sure that you understand the answer and write it properly. Listen, आंसर की लेंथ पे मत जाओ कि अरे बाप रे कितना लंबा आंसर है, ठीक है? तुम्हें रटना नहीं है वो आंसर को. सो जस्ट मेक श्योर कि उसको समझो, ठीक है? 3 पॉइंट्स दिए हैं तो वो 3 पॉइंट्स याद रखो और जाके लिख के आ जाओ. Now, why has cricket a large viewership in India, not in China or Russia? क्यों नहीं है, मतलब इंडिया में क्रिकेट इतना पॉपुलर है, इतना ज़्यादा व्यूअरशिप है उसकी, लेकिन चाइना और रशिया में क्यों नहीं है? अब ये जो आंसर है थोड़ा हिस्टोरिकली हमें कनेक्ट करना पड़ेगा. क्रिकेट इज़ पॉपुलर मोस्टली इन द कॉलोनियल कंट्रीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. मतलब जब ब्रिटिश का पूरा एम्पायर था तो जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज थी उनके बीच में वो बहुत फेमस था, बिकॉज इट्स अ गेम विच वॉज इन्वेंटेड इन इंग्लैंड. ये इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था. सो वहीं से ये हमको मिला है. तो जो हम थे, ऑस्ट्रेलिया था, सो ये सारी जो कंट्रीज थी दे वर स्टिल अंडर द ब्रिटिश एम्पायर. चाइना और जो रशिया थे वर नेवर कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिश. ब्रिटिश ने कभी कॉलोनाइज नहीं किया, मतलब वहाँ पे वो लोग कभी, उन्होंने अपना चाइना और रशिया को कभी कॉलोनाइज नहीं किया, इसीलिए वहाँ पे व्यूअरशिप ज़्यादा नहीं है. सो आंसर में सिर्फ इतना याद रखना दैट इंडिया जो था वो इट वाज अंडर द कॉलोनियलशिप ऑफ ब्रिटिश, और चाइना और रशिया कभी नहीं था. दैट इज इट. दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गेम्स इक्विपमेंट? यार ये बहुत ही ईजी आंसर है. गेम्स के मतलब उस गेम के इक्विपमेंट क्या होते हैं? इक्विपमेंट मतलब वो सारी चीज़ें जब आप कोई गेम खेलने में नेसेसरी होती है,
जैसे कि क्रिकेट विदाउट बैट। कैन यू इमेजिन, आप क्रिकेट खेल रहे हो विदाउट बैट, या क्रिकेट खेल रहे हो विदाउट बॉल, या आपके पास बैट है और बॉल है, स्टंप्स नहीं है, राइट, या गिल्लियां नहीं है, या ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, राइट। सो ये सारे इसके इक्विपमेंट्स होते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द इक्विपमेंट्स। फर्स्ट, इक्विपमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर प्लेइंग द गेम। कोई भी गेम होता है, फुटबॉल में क्या जरूरी है, फुटबॉल अपने आप में वो बॉल जरूरी है, राइट। सो अगर हम बैडमिंटन खेल रहे हैं तो हमें रैकेट्स चाहिए, हमको शटल्स चाहिए। सो दीज आर द इक्विपमेंट्स। एंड क्रिकेट में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, बॉल, बैट, विकेट, हेलमेट्स, ग्लव्स, पैड्स, और जो मेरे जो यहाँ पे क्रिकेट फैंस हैं उनको और भी ज्यादा पता होगा, भाई सब लिख के आ जाना, राइट। दीज आर योर इक्विपमेंट्स। हाउ इज टेस्ट क्रिकेट अ यूनिक गेम इन मेनी वेज। मैंने बोला जब मैं पढ़ा रही थी ये चैप्टर, आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वी हैड डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, राइट। सो नाउ इट्स टाइम टू answer the question. So how is cricket a unique game? Test game is unique, okay. जो टेस्ट क्रिकेट है that is unique because 5 दिन भी चलता है और ड्रॉ हो जाता है, हो सकता है, मतलब of course I can win the game, मतलब like a team can win the game or a team can lose the game, लेकिन ड्रॉ भी हो सकता है, 5 दिन तक चलने के बाद भी ड्रॉ हो जाता है। So this is what we are going to write here. Test game is unique in the sense that even though it is played for 5 days, it ends in a draw. No other modern team sport takes even half as much time to complete. मतलब बाकी के जो गेम्स हैं उनको आधा टाइम भी नहीं लगता है, लेकिन ये जो है हमारा जो क्रिकेट है, हमारा जो वाव क्रिकेट गेम है, ये अपने हिसाब से चलता है। नेक्स्ट वन इज हाउ इज क्रिकेट डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स। सो इसके आंसर्स पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। It is very easy. Don't look at the length again. Let's quickly understand how to write. Cricket is different from other team games because of the following reasons. First क्या है, किसी भी गेम से ये ज़्यादा लंबा है, right? It is longer than any of the modern games that we know of. So first, it's a longer time. Now the second one is it also has different formats, which means हमारे पास क्रिकेट के बहुत सारे वर्जन है। वी हैव वन डे क्रिकेट, वी हैव 2020, वी हैव IPL, वी हैव टेस्ट क्रिकेट। सो फॉर्मेट्स हैं, बाकी सारे गेम एक ही तरीके से चालू होता है और एक ही तरीके से खत्म होता है। सो हाउ विल वी फ्रेम दिस थिंग? इट ऑल्सो हैज डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक टेस्ट क्रिकेट, वन डे इंटरनेशनल एंड T20 मैच, एंड ईच गेम टेक्स डिफरेंट टाइम टू गेट कंप्लीटेड, राइट। वेरी सिंपल। थर्ड पॉइंट क्या है? In cricket, only the length of the pitch is specified. ये बहुत important point है, right? Only the length is specified, which is how much? 22 yards. And the dimensions of the playground are not specified, while there is no specific measurement for the ground. In other games, the dimensions of the playing area is specified. So be it football, be it hockey, जो आपके dimensions होते हैं playground के, वो specific होते हैं, but इसमें नहीं है। सो 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, बहुत लंबा चलता है। सेकेंड, इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। एंड थर्ड, इसमें जो डायमेंशंस हैं ग्राउंड के वो स्पेसिफिक नहीं होते। सो वेरी सिंपल आंसर, या आई एम श्योर यू मस्ट हैव ऑलरेडी लर्नड इट। नाउ हाउ हैव एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट। सो यहाँ पे एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी में हम 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है इसका, राइट, टेलीविजन के बारे में बात करेंगे, और दूसरी चीज़ हम बोलेंगे अबाउट द इक्विपमेंट्स, जो हमको जो ये प्रोटेक्टिव, नॉट द इक्विपमेंट्स, प्रोटेक्टिव गार्ड्स जितने भी हैं, हम उनकी बात करेंगे। सो आफ्टर द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्लेयर्स हैव स्टार्टेड वेयरिंग मोर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ज़्यादा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने लग गए हैं। द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज, इसमें हम बात करेंगे वल्कनाइज रबर की, जिसकी वजह से वल्कनाइज रबर क्या होती है बताया था मैंने। वल्कनाइज रबर मतलब जो रबर होती है उसको दे हीट इट अप विथ अदर केमिकल्स और उससे वो उसको हार्ड कर देते हैं। वरना अगर तुम्हारी इरेजर जैसा रहेगा, वो भी तो रबर ही है ना, अगर वो इरेजर जैसा रहेगा या वो जो आप अपनी पोनी टाई करने के लिए रहते हो तो बॉल आएगी और तुम्हें लग जाएगी एंड यू विल बी डन, राइट। सो
दैट इज़ वाई उसको हार्ड करते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो दैट इज़ वल्कनाइज्ड रबर एंड दैट हैव मेड पॉसिबल द यूज ऑफ पैड्स. सैटेलाइट्स हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द पॉपुलैरिटी एंड द ऑडियंस ऑफ क्रिकेट. ये जो सैटेलाइट है जो ब्रॉडकास्ट हो पा रहा है, one can now watch live matches while sitting at home and technology has also helped in taking fair decisions. 4 points है बॉस. फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जितने भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी प्रोटेक्टिव गेयर्स होते हैं बेसिकली, वो बनाने के लिए हेल्प हुआ है, जिसमें वल्कनाइज्ड रबर के थ्रू आप पैड्स बना रहे हो, आप मेटल के हेलमेट्स पहन रहे हो, यू हैव गॉट दिस एल गार्ड एंड यू हैव गॉट दिस थाई बैट्स एंड ऑल दीज थिंग्स. तो ये मेंशन करोगे. सेकंड पॉइंट क्या है, अबाउट द टेलीविजन, मतलब टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से आज घर घर तक क्रिकेट पहुंच रहा है. सिंपल सेकंड पॉइंट. एंड थर्ड पॉइंट इज यू मस्ट हैव सीन ना, जब समझ नहीं आता कि ये आउट है या नॉट आउट है, तो देयर इज दिस थर्ड एम्पायर, राइट, जिसमें आप एकदम फोकस करके स्लो मोशन में देखते हो, बड़ी हुई धड़कनों के साथ. एग्जैक्टली राइट. तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, इट्स अ थैंक यू टू टेक्नोलॉजी. सो इट्स अ थैंक यू टू, बिकॉज उसी के टेक्नोलॉजी की वजह से हमें पता चल जाता है कि यू नो इफ इट इज़ अ फेयर डिसीजन, हमें फेयर डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है. सो दीज आर योर 3 पॉइंट्स. इसको सही तरीके से लिख के आना, पूरे मार्क्स तुम्हारे. Now explain how cricket changed with changing times and yet remain unchanged in some ways. So ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था कि क्रिकेट जो है बहुत सारे तरीके से चेंज हुआ है. जैसे कि इनिशियली बैट कैसा होता था, कर्व्ड होता था, फिर बाद में वो फ्लैट हो गया. इनिशियली पूरा जो बैट था वो एक ही पीस ऑफ वुड से बना होता था, बाद में वो इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अब जो ऊपर का जो हैंडल होता है इट्स मेड अप ऑफ केन, और जो नीचे वाला जो पूरा जो ब्लेड होता है इट्स मेड अप ऑफ दैट विलो ट्री का वुड, राइट. एक और एडवांसमेंट क्या हुआ था, आपके पास प्रोटेक्टिव मेजर्स वगैरह आ गए, राइट, वो सारी चीज़ें आ गई. लेकिन व्हाट इज दैट वन थिंग विच इज स्टिल अनचेंज्ड, इट इज दैट आज भी जो हम हैं, हम नेचुरल चीज़ को यूज़ कर रहे हैं. वी आर यूजिंग वुड एंड वी आर नॉट यूजिंग द फाइबर ग्लास और प्लास्टिक और एनी अदर मेटल. वी आर नॉट यूजिंग दैट, और वो आज भी हैंडमेड होता है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर. लेट्स सी हाउ आई हैव फ्रेम्ड इट. With the change of time, technology got more advanced and players started wearing protective equipments. ये तो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है. Earlier the bat was made of one piece. Today it has a separate blade and handle. So ये जो made of one piece था और अब उसकी separate blade and handle है, ये तुम्हारा second point हो गया. Okay? अब है decisions became fairer. ऑब्वियसली विथ टेक्नोलॉजी क्या हुआ, हमें थर्ड एम्पायर अंकल की हेल्प मिल गई, तो ये हमारे पास डिसीजंस, हम फेयर डिसीजंस लेने लग गए. एंड विथ मोशन सेंसर कैमरास, वो जो हमारे मोशन सेंसर कैमरास होते हैं जिसमें हम स्लो मोशन में देखते हैं कि वो क्रीज के उधर था या वो क्रीज के इधर था, वो आउट था या वो नॉट आउट था. But still, both bat and ball are handmade and not industrially manufactured. ये है. So ये जो है how cricket has changed, उसके ये first, second and third 3 points हैं. And how it has not changed, उसके लिए हमें बस एक ही point लिखना है. Confusions? I hope नहीं है. Please मत रखना. बहुत easy है. बहुत easy answer है. Okay. Now let's move ahead. अब ये word search है. My favorite. Okay, see how the Mickey Mouse is so happy. Okay, so word search है. 12 words associated with cricket are hidden in this grid. 6 can be found horizontally. तो आपके पास word search है. 6 आप horizontally हैं और नहीं sorry 6 horizontally हैं, 6 vertically हैं और आपको clues दिए हुए हैं, right? So ये तुम्हारे clues हैं. And accordingly you have to answer, like fill in this, think. अब हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या हमारे clues हैं. And then let's fill the crossword. It's fun, right? So the first one is 6 deliveries. Okay, 6 deliveries को क्या बोलते हैं? All my cricket fans out there. 6 deliveries, एक over, मतलब एक over में कितनी deliveries होती हैं बॉल की? So that is 6 deliveries. So इसको बोलते हैं एक over. 4 runs. 4 runs. So you call it a boundary. Then attacked while out of arena. So attacked while out of arena is a wicket. आउट है. नेक्स्ट वन इज नो रिजल्ट. अगर नो रिजल्ट आया मतलब कोई नहीं जीता और कोई नहीं हारा तो वी कॉल इट अ ड्रॉ. लेट्स चेक द आंसर. मैं सही हूँ ना?
Yes, you call it draw. Next one is stumps. Stumps means अगर आपकी गिल्लियाँ उड़ गई, something like that, तो we call it bowled. And then we have fielder to the off side of the wicket keeper. So wicket keeper के जो off side में fielder होता है उसको हम बोलते हैं slip. And yes, correct answer. Next is vertical, stumps flying. So stumps flying को भी call stumped. Then back to the pavilion, out. A lofty one, lofty का मतलब होता है बहुत high. So उसको what do you call है? 6. Then mid air mishap, हवा में जो गड़बड़ हो जाती है, that we call as catch out, caught. Not even 1 out of 6, मतलब अगर पूरे जो 6 balls हैं एक पूरे ओवर में अगर एक भी रन नहीं मारा है, then you call it a maiden over. And then goes with bat. So कौन सी चीज़ है जो बैट के साथ जाती है? That is your ball. So let's see this. Okay, so where we have this. So this is our over. Let me use a good color. Okay, so we have over, and then there we have maiden. और मेरा रेड कलर अभी भी नहीं आया है. Much better. Then we have boundary. जहाँ this is our boundary. Then we have out. Okay. Then we have 6. Then we have draw. Draw हो जाता है ना मैच. Okay. और क्या है? Yes, here we have wicket. Okay. और कौन सा है? Bold. So ये रहा हमारा bold. और कुछ छूटा क्या? So और कौन से words थे? So let's see the answer. So the answer is yes. So here we have our over, then bold, then ball, wicket, draw, 6, out, boundary. Okay, caught बचा था, slip and maiden. And that's it. Yes, stumped. यहाँ पे है stumped. वैसे आप लोगों को मिल ही गया होगा because this is so much of fun. So now let's move forward to the next question. So here we are done with the question answers related to the chapter. Now we are going to start with the grammar part. Okay, so make sure you understand this. Here we are talking about the first question. We are talking about adverbs. एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो वर्ब्स के बारे में बात करते हैं या एडजेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इफ आई एम राइटिंग, ओके आई एम राइटिंग नाउ, लेट्स से इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, आई एम राइटिंग इन अ वेरी स्लो वे. सो इन अ स्लो वे को व्हाट कैन आई से? दैट आई एम राइटिंग स्लोली, राइट? सो अगर इफ आई एम वॉकिंग and if I'm walking really fast, okay, so fastly, and if I say I'm eating with a lot of greedily, okay, or if I say like और क्या हो सकते हैं? I'm happy, I'm doing some work in a very happy way, so we say I'm doing it happily. So इन्हें हम adverbs of manner कहते हैं. मतलब किसी भी चीज़ को हम किस तरीके से कर रहे हैं, हम वर्ब कोई काम तो कर रहे हैं लेकिन किस तरीके से कर रहे हैं. सो इन अ वे इट टेल्स अस और इट गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब वी आर डूइंग, right? So that is known as a adverb of manner, and usually these are formed by adding ly to our verb. So now we have got certain questions over here and we are going to answer them. हमें उस पर्टिकुलर पूरे फ्रेज को ly लगा के, उस वर्ड में ly लगा के चेंज करना है. लेट्स सी कैसे करना है. He runs between wickets as if his legs were stiff. As if his legs were stiff मतलब he was running stiffly, right? So your answer will be he runs between wickets stiffly. हमारे as if his legs were stiff, तो यहाँ पे इस adjective में हमने ly add किया and we got our adverb stiffly. So this is how you have to do this. Another example, let's see.
वाई डिड द बैट्समैन स्विंग द बैट इन सच अ वायलेंट मैनर. सो किस मैनर में कर रहा है वो वायलेंट मैनर में कर रहा है. सो वायलेंट मैनर को हम कह सकते हैं वायलेंटली. सिंपल. सो वो वायलेंट मैनर में कर रहा है, उसको हम वायलेंटली कह सकते हैं. सो अब हम ये पूरा हटा देंगे. इन सच अ वायलेंट मैनर की जगह वी विल ओनली राइट वायलेंटली. So let's quickly start with our questions. The first question is, it is obvious that the work has not been done in a proper way. Now, not been done in a proper way को हम बोल सकते हैं properly. So the work has not been done properly. I hope you got it. चलो next देख लेते हैं. So he made the statement in a firm manner. इन अ फर्म मैनर को हम कहेंगे फर्मली. मतलब उसने जो अपना स्टेटमेंट दिया वो बहुत ही फर्म तरीके से दिया, जिसमें वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था, कंफ्यूज नहीं हो रहा था. तो उसने अपना स्टेटमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दिया, बहुत ही फर्मली दिया. ओके. सो इन अ फर्म मैनर को हम कहेंगे फर्मली. नेक्स्ट. ओके. The job can be completed within a week in an easy way. अब ये जो जॉब है हम उसको एक वीक में इजीली कर सकते हैं. Exactly. In an easy way को हम कहेंगे easily. Next one. You did not play in a serious manner. तुमने बिल्कुल भी seriously नहीं खेला, or else you would have won the match. In a serious manner को हम कहेंगे seriously. अंडरस्टूड. जब भी इन दिस मैनर कहेंगे तो उसमें हम ly लगा के उस वर्ड को एडवर्ब बना देंगे. नेक्स्ट वन इज, शी रिसाइटेड द पोम इन अ चीयरफुल मैनर. उसने चीयरफुल मैनर में कहा, इसका मतलब चीयरफुली. ओके. नाउ वी आर डन विद दैट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. थर्ड क्वेश्चन. यू हैव बीन गिवन फ्यू फ्रेजेस ओवर हियर. और इन फ्रेजेस को हमको हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें फिलअप करना है. नाउ मतलब फिलअप करना है एज इन हमको उसमें यूज़ करना है कि एग्जैक्टली क्या यूज़ होगा. एक्चुअली आई डिड नॉट इंटेंड टू कम टू योर प्लेस, आई रीच्ड हियर विदाउट प्लानिंग. नाउ जब हम विदाउट प्लानिंग करते हैं कोई काम, फॉर एग्जाम्पल आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो देयर, या मैं मॉल नहीं, या फिर मैंने उससे मिलना मेरा बिल्कुल भी प्लान ही नहीं था, बट आई मेट हर एक्सीडेंटली. तो जो चीज़ प्लान नहीं होता है वो एक एक्सीडेंट होता है. एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ धड़ाम नहीं होता. राइट. सो आई रीच्ड हियर विदाउट प्लानिंग को हम कहेंगे बाय एक्सीडेंट. So your answer will be, actually I did not intend to come to your place, I reached here by accident. Okay, next one. Let's see the next one. Sunil, there is a letter for you in today's post. There is one for me also. So अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, एक है as well. As well का मतलब क्या है, भी, इसके लिए भी. सो जैसे तुम्हारे लिए आज एक लेटर है और मेरे लिए भी एक लेटर आया है. सो देयर इज वन फॉर मी ऑल्सो की जगह हम लिख सकते हैं देयर इज वन फॉर मी एज वेल. एज वेल एंड ऑल्सो का मतलब भी होता है इसका बेसिक मतलब. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. एवरीबडी थॉट आई हैड कंपोज द पोम. द ट्रुथ इज माई यंगर सिस्टर डिड इट. सबको लगा कि वो जो पोम है मैंने लिखी है, लेकिन द ट्रुथ इज कि मेरी छोटी बहन ने वो लिखी है. सो हम इसके लिए क्या कहेंगे, मतलब रियलिटी ये है. सो रियलिटी ये है या सच बात ये है. सच बात ये है के लिए हम बोलते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. ओके, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है सच बात ये है. तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, एवरीबडी थॉट आई हैड कंपोज द पोम. As a matter of fact, my younger sister did it. Now, all those kids who are trying to learn English, आप अपनी spoken English पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आपको बहुत amazing English बोलनी है, so ये वाला पार्ट बहुत important होता है, जो grammar वाला पार्ट होता है, because it helps you to have a fluent English. क्यों? क्योंकि हमारी grammar में mistakes नहीं होती. So, और ये जो नए phrases हैं इनको use करो. Like you know, as a matter of fact, I have completed my entire syllabus. My mama thought
कि मैंने तो अपना काम किया ही नहीं है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कंप्लीटेड माई एंटायर होमवर्क. सो टॉक लाइक दिस. ट्राई टू यूज दीज फ्रेजेस इन योर डे टू डे लाइफ. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. The doctor told the patient to make sure that he took his pills on time. अब ये जो to make sure होता है मतलब ये चीज़ ध्यान रखना और पक्का पक्का. So see to it. इसका मतलब क्या होता है कि आप पक्का ये देखिएगा that you are doing this. मतलब you see to it that you are studying on time. You see to it that you are completing your homework. You see to it that you are watching these videos and completing your syllabus on time. So see to it का मतलब क्या होता है कि आप पक्का पक्का ये देखिए that ये काम आप कर रहे हैं. So हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? The doctor told the patient to see to it that he took his pills on time. मतलब आप इस बात पे गौर करिएगा. Make sure that you take the pills on time. Okay, and next one is it will be better for us to plan our trip before setting out. Okay, इसका मतलब अब यहाँ पे हमारे पास जो फ्रेज है वो है we had better. मतलब ये सही रहेगा अगर हम ये काम कर लें. जैसे कि अरे यार we had better plan our trip or we had better arranged everything before mama comes. तो जैसे अगर आप लोग घर पे हैं, मम्मा ऑफिस से आने वाली है, तो यार वी हैड बेटर प्लान आवर थिंग्स सो दैट वी डोंट गेट स्कोल्डेड. सो अब इसमें क्या कर रहे हैं हम? वी हैड बेटर प्लान आवर ट्रिप बिफोर सेटिंग आउट. ओके, मतलब जाने से पहले ही हम अपनी पूरी ट्रिप की प्लानिंग कर लेते हैं. सो दिस इज हाउ यू विल यूज दिस फ्रेज. ओके, एंड we are done with this question. So guys, in the last question we have a lot of phrases. Please understand the meaning of each and every phrase carefully and then only switch to the next question. Okay, now the next question is very easy. You have been given certain words like GH, FF or F. इनका pronunciation में हमें ध्यान देना है and we have to fit in to make proper words. For example, E. So what can I write if I write F and F? So it is effort. Okay, effort. Now here if I can use only F then it will become fact. Now here confess. Here LAUGH. If I write GH then it will become laughing. Now the word is GH but the sound is F. Laughing. Laughing. Next one is ENOUGH. If I write GH here it becomes enough. Again the sound is F. HALF means half. Then SCRUFF is scruff. Then ROUGH is rough. Then STR, now here we can say stiffly. Okay, then difference, here safety and here flush. Understood? So basically through this particular activity what did you understand? That the sound of GH is F, double F is also F and F is F. So please जब हम spellings form कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा. So here are the answers. Okay, next one, write 2 paragraphs describing a bus ride to watch a cricket match in a village. Use the following points, add some of your own. So अब हमको इसमें पैराग्राफ राइटिंग करनी है और हमें कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उसको ऐड करते हुए वी हैव टू राइट अ स्टोरी. नाउ इसमें आपकी क्रिएटिविटी, आपका स्पेलिंग नॉलेज, आपका वर्ड नॉलेज, वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, आपका ग्रामर नॉलेज, इसमें सब कुछ आ जाएगा. सो वी हैव डन इट. अब हमको क्लूज क्या दिए हैं? दैट हमें एक पहली चीज़ तो हम क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं एक विलेज में, और हम कैसे जा रहे हैं? हम बस से जा रहे हैं. 2 आवर्स जर्नी है हमारी. ये एक बहुत ही पुरानी और क्राउडेड बस है. क्राउडेड मीन्स जिसमें बहुत भीड़ है, बहुत अच्छे पैसेंजर्स हैं, फ्रेंडली हैं. विजिट टू अ विलेज फेयर वेयर द मैच इज टू बी प्लेड. अब जहाँ पे आप जिस जगह पे जिस विलेज में मैच देखने गए हो वहाँ पे एक मेला भी लगा हुआ है. फेयर मीन्स दैट देयर इज अ मेला. The match between 2 village teams. Now what is the match all about? The match is about that 2 village teams are playing against each other. Makeshift stumps
rough pitch and a rubber ball. So when you went there you saw कि वो जो पूरे stumps हैं वो बहुत ही मतलब वो they are not proper stumps, आपकी जो pitch है वो बहुत rough है, and there is a rubber ball, not a proper cork ball. The match was enjoyable but the trip was tiring. Match बहुत इंटरेस्टिंग था लेकिन ट्रिप जो थी वो बहुत टायरिंग थी. अब हम ये सारे क्लूज को लेके we have to weave it in a story. Now let's see how we have to weave the story. I'm going to read it, explain it to you. You can also write your own story. अगर इसी में कुछ और आपको ऐड करना है, like I would love it अगर आप वो सारी चीज़ें ऐड करते हो. And if you write your own paragraph, then please share it with me. So let's quickly read the story. A cricket match was organized in Muzaffarnagar last week. I went to watch the match along with my friends. So मुजफ्फरनगर में एक क्रिकेट मैच था, उसको मैं अपने फ्रेंड के साथ देखने गया. I live in Modi Nagar and Muzaffarnagar is a 2 hours bus journey from my place. मैं मोदी नगर में रहता हूँ और मुजफ्फरनगर मेरे घर से 2 घंटे की दूरी पे है. We caught a bus of Uttar Pradesh transportation from the bus depot near my place. So जो बस डिपो है मीन्स जहाँ पे सारी बसेस आके रुकती हैं, वहाँ से जो मेरे घर के पास था वहाँ से हमने उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्टेशन की एक बस जो थी उसको उस पर हम लोगों ने हमने कैच करी एंड हम उसमें बैठ के निकली. अब हम बस को डिस्क्राइब कर रहे हैं. इट वॉज एन ओल्ड एंड क्राउडेड बस. We did not get any seat and had to keep standing all through the journey. So अब आप कुछ भी ऐड कर सकते हो. जब of course crowded है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि तुम्हें जगह नहीं मिली, या तुम बोल सकते हो कि आधी दूर जगह नहीं मिली. So whatever you feel like writing you can add. So what did I write here? That हमको कोई सीट नहीं मिली and we had to go all the way and we were standing. The passengers were mostly farmers from the nearby villages. So जो जितने भी passengers थे वो mostly farmers थे. Now they were very simple and friendly. Now remember we had to mention the clue that they were friendly, so I have done it here. We were chatting with each other and cracking jokes. अब हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे क्योंकि वो लोग बहुत friendly थे and we were cracking jokes. It was a long journey and the roads were very bad. You remember that clue में लिखा था that it was a long but tiring journey, so you have to mention कि roads बहुत ख़राब थी, आपको खड़े रहना पड़ा था, बहुत ही old और crowded बस थी, इसीलिए आप थक गए थे. When we finally reached Muzaffarnagar, I felt relaxed. There was a large fair being organized at the place where the match was to be played. So जब हम फाइनली मुजफ्फरनगर पहुंचे तो वहाँ पे क्या देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा सा मेला लगा हुआ है. Now there was still time for the match to begin. मैच चालू होने में अभी थोड़ा टाइम था. So we decided to enjoy the fair. So what did we try? We went there and we enjoyed the fair. There were many stalls of food items and games at the fair and we had great fun. So while the match was still it was about to start and they had some time, so what did they do? They went to the fair. There were a lot of games, there were a lot of food items to eat and they had a great fun. The match started on its time. So जिस टाइम पे मैच स्टार्ट होना था उस टाइम पे मैच स्टार्ट हुआ. It was between 2 village teams. हमें ये भी मेंशन करना था. We were cheering for our team. There was a tough competition that वो मैच इंटरेस्टिंग क्यों था? क्योंकि it was a very tough competition and both the teams and finally our village won the game. Obviously ना अपनी ही स्टोरी में तुम दूसरी टीम को क्यों जिताओगे, तो अपनी टीम को जिता देना. The match was very exciting and enjoyable, but the long journey had made us tired. It was a very good day that left behind many exciting memories. So the long journey was tiring, but the day was very interesting. And उसमें हमें बहुत सारी exciting memories मिली. So this is how we have framed our paragraph, a short story. Now here are our champions and that is it. So on this note we finish our chapter. I hope you understood it well and we have got so much of information about cricket. Now ready to flaunt, right?
प्लीज़ मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. कोई भी डाउट्स होते हैं, डू मैसेज मी, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एवरीवन. एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग दैट इट्स इंग्लिश, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी वोकैबलरी सही है, ग्रामर पार्ट सही है. सो डोंट जस्ट टेक इट लाइटली कि यार मुझे इतने सारे सब्जेक्ट्स करने हैं. मेक श्योर दैट यू गिव प्रॉपर अटेंशन टू दिस सब्जेक्ट एज वेल. So we are done here. I hope you understand everything. And now it's time to say bye-bye. So take care, stay safe, stay connected, and bye-bye.